مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور شیر نیپال حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب قبلہ برکاتی، حضرت علامہ مفتی محمد اظہار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور شیر نیپال، نعرہ۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ محفل کئی اعتبار سے تاریخی ہے۔ آج اس محفل میں ذمہ دار علماء کرام، مفتیان نظام اور ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں۔ جتنے بھی قدیم علماء کرام برسر اسٹیج ہیں، تقریباً اکثر میرے استاد گرامی ہی ہیں۔ خلیفہ حضور شیر نیپال، حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب الرحمان صاحب برکاتی، استاد گرامی مفتی مثلانچل خلیفہ حضور شیر نیپال حضرت علامہ مفتی محمد اظہار احمد صاحب نورانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، دوسری طرف استاد گرامی حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ اور استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ایوب صاحب قبلہ، اس سارے کے سارے برسر اسٹیج ہیں۔ تمام علماء کرام کی آپ زیارت فرما رہے ہیں اور اس محفل کی سرپرستی اور اس محفل کی صدارت جو فرما رہے ہیں محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا محبوب العلماء خلیفہ حضور قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مولانا عبد الوکیل صاحب امجدی بردی باز۔ ہمارے اسٹیج پر رونق اسٹیج ہیں بہار و نیپال کے بہترین نقیب، بہترین نقابت کرنے والے محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رجب علی صاحب سیائی، 2 نمبر پردیش نیپال۔ 2 نمبر ان کے پردیش کا نام ہے، باقی آدمی 1 نمبر ہیں۔ تمام کے تمام ذمہ دار علماء کرام ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، لہذا میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج کی یہ محفل کئی اعتبار سے تاریخی ہے، جہاں ہمارے مقدس اکابرین کا آج اجتماع ہے، اس اعتبار سے بھی تاریخی ہے، اور یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، شادی کی زندگی میں بار بار نہیں ہوتی، اس اعتبار سے بھی تاریخی ہے۔ اور آج ہی کے دن ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ شہنشاہ ہندوستان کے 1857 عیسوی کے سب سے پہلے مجاہد آزادی، آخری ہندوستان کے تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تاریخی وصال بھی ہے۔ آپ نے رنگون کی جیل میں تقریباً آج سے 164 سال پہلے ایک آپ نے کلام لکھا تھا کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہرحال آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے میں، لڑکیوں کے انتخاب کے معاملے میں 4 چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ان بنیاد پر
औरतों से निकाह किया जा सकता है, उसके माल की बुनियाद पर, हस्ब व नसब की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी को तरजीह देने की बात कही। दीनदारी को तरजीह दो। दीनदारी क्या है? आजकल हमारा नज़रिया, हमारा मिजाज, हमारा ख्याल, जो साहिब औलाद है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता किया है, उनका मिजाज हमेशा हमेशा चौथे आसमान पे रहता है। इस्लाम में सबसे आसान से आसान तर अगर किसी शय को बनाया है तो वो है निकाह। लेकिन हमारी बदअमली ने, हमारी कमजरफी ने, हमारी बेदीनी ने, हमारी लापरवाही ने आज सबसे मुश्किल तरीन काम कर दिया है निकाह। जिसके पास अगर 2-4 बेटियां हैं उसके रात की नींद हराम, सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान की सांस नसीब नहीं होती और दिल में हमेशा इज्तिनाबी कैफियत तारी होती रहती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह। आज हमारा सारा का सारा ध्यान लड़की वालों के माल पर होता है, उसकी दौलत और सरबत पर होता है, उसके जाहो जलाल पर होता है, कितना माल है, कितना पैसा उसके पास है, कितना हमको दे सकता है। सारा का सारा ध्यान लड़की की क्वालिटी पर किसी की निगाह नहीं होती। उसकी खूबियों को लोग नहीं देखते, उसकी दीनदारी को लोग नहीं देखते। खलीफा दोम हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौरे खिलाफत इतनी शानदार रही है कि पूरी तारीख़ इस्लाम में उनकी खिलाफत जैसी मिसाल नहीं मिलती है, और इतने फतवाहात जितने उनके ज़माने में हुए और किसी के ज़माने में नहीं हुए। सबसे ज़्यादा मुल्क फतह किए गए, और आपका आलम यह था कि आप रात को मोहल्लों में घूमते थे, गलियों में गश्त करते थे, चक्कर लगाते थे कि किसी के घर से रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही है, किसी के घर से बच्चे के बिलकने की आवाज़ तो नहीं आ रही है, किसी का बच्चा भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी के घर में परेशानी तो नहीं है। अगर किसी के घर में परेशानी होती तो फौरन उस घर में जाते, उसकी परेशानी को हल फरमाते। अगर किसी का बच्चा भूख से तड़प रहा होता तो फौरन ही उसी वक्त अपने कंधे पर बोरी रखकर उसके घर पहुंचा देते अनाज, ताकि बच्चों को खिलाए पिलाए, इत्मीनान से सुलाए। इतने बड़े अदल व इंसाफ के पैकर का नाम था खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप एक मरतबा मोहल्ले में गश्त कर रहे हैं, गली कूचे का चक्कर लगा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर, खड़े हो जाइए। हुजूर सैयद साहब किबला की आमद हो गई, आले रसूल की आमद है, शहजादे रसूल की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद अबरारुल कादरी, नारे तकबीर। बहरहाल उस बुढ़िया ने कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो। उस बुढ़िया की बेटी ने कहा, नहीं अम्मी जान, उमर फारूक देखे नहीं देखे, खुदा तो देख रहा है। सुबह जब होती है, हज़रत फारूक आज़म का दरबार लगता है। हज़रत फारूक आज़म ने अपना एलची भेजा उस बुढ़िया को बुलाने के लिए। जैसे एलची बुढ़िया को बुलाने के लिए जाता है, उस बुढ़िया का बदन थर थर कांपने लगता है। बुढ़िया ने समझा कि शायद रात की बात लगता है उमर फारूक ने सुन लिया है, और अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो आज हमारी खैरियत नहीं है, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, मेरी गर्दन मार दी जाएगी, मैं कत्ल कर दी जाऊंगी। लिहाजा बुढ़िया डर से थर थर कांपने लगती है। लेकिन हजरत फारूक आज़म का फरमान था, वो इनकार भी तो नहीं कर सकती थी। हजरत फारूक आज़म की बारगाह में वो बुढ़िया आई। हजरत फारूक आज़म तशरीफ़ फरमा है, दरबार लगा हुआ है। जैसे बुढ़िया किनारे में आकर खड़ी होती है, हजरत फारूक आज़म उस बुढ़िया के पास जाते हैं और जाकर उस बुढ़िया के कान में कहते हैं, बूढ़ी माँ, तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा से कर दो। सुभान अल्लाह। उस बुढ़िया ने कहा, हुजूर
होश तो ठिकाने हैं आपके? सरकार दिमाग तो काम कर रहा है आपका? कहाँ आप अमीरुल मोमिनीन हैं? कहाँ मुसलमानों के आप इमाम हैं? तमाम मुसलमानों के सरदार हैं, इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान हैं, और हुजूर आपकी क्या कर रहे हैं? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे आपको? सरकार लोग ताना मारेंगे कि उमर फारूक ने झोपड़ी नशी के घर में अपने बेटे का रिश्ता कर लिया है। सरकार ऐसी खता न करें, सरकार ऐसा फैसला न करें, दुनिया ताना मारेगी, दुनिया हंसेगी आपको। हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि बूढ़ी माँ, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा से कर दो। उस बुढ़िया ने कहा, ना हुजूर, ये कतई मुमकिन नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लोग कल को ताना मारेंगे कि बुढ़िया जादूगरनी है, हमने उमर फारूक पे जादू कर दिया है, और जादू के नशे में उमर फारूक ने ऐसा फैसला लिया है, लिहाजा मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकती। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, बूढ़ी माँ, आप मानो नहीं मानो, आपकी बेटी है, फैसला आपके हाथ में है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा से कर दें। उस बुढ़िया ने कहा, हुजूर, आखिर मेरी बेटी के अंदर क्या खूबी देखी आपने? हज़रत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, बूढ़ी माँ, जब रात के सन्नाटे में, इतनी सख्त और तारीक रात में तुम्हारी बेटी अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतना डरती है, तो दिन के उजाले में कितना डरती होगी? दिन के उजाले में कितना डरती होगी? लिहाजा आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटा से कर दें। सुभान अल्लाह, ये मुसलमानों के सबसे बड़े अमीर की बात है, सबसे बड़े सरदार की बात है, मुसलमानों के इमाम की बात है, अमीरुल मोमिनीन की बात है, मुसलमानों के हुक्मरान की बात है कि अपने बेटे का निकाह दीनदारी की बुनियाद पर झोपड़ी नशी की यहाँ कर रहे हैं। और एक हम हैं कि हमारा मिजाज चौथे आसमान पर चढ़ा रहता है, और हम कहते हैं कि हमारा बेटा इज्जत नहीं करता, हमारा बेटा हमारी कदर नहीं करता। अजीब बेवकूफ वाली सोच है, अजब घटिया सोच है। इस बेवकूफी पर शैतान को भी हंसी आ जाए। उन गांव बाजार में कोई माल जाल ले जाता है बेचने के लिए, बैल बेचा, पैसा लिया, अपने घर आया, ऐसा थोड़ी होता है कि बैल भी बेच लिया और पैसा ले भी लिया और बैल भी वापस ले आया। ये तो कहीं का सिस्टम ही नहीं है कि आप सामान ही बेच दे और सामान भी अपने साथ ले आए। आप अपने लड़के का निकाह करते हैं, बेटी वाले से कीमत वसूल लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, जाहिर सी बात है जिसने पैसा दिया माल उसका हुआ, और फिर भी आप उम्मीद अगर लगाते हैं कि बेटा हमारे कब्जे में रहे। ये तो दुनियावी सिस्टम के भी खिलाफ है, तो बेटा आपके कब्जे में कैसे रह सकता है? माल को बेच दिया आपने, जिसका पैसा दिया उसका माल, अगर वो सास ससुर की खिदमत कर रहा है तो बेचा क्या है? इसमें बुराई क्या है? इसमें हर्ज क्या है? उसने खरीदा है, लिहाजा जिसने खरीदा है उसका माल है, इसमें बुराई क्या है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो हमारा सारा ध्यान लड़की वालों के माल पे होता है, और याद रखिए, नस्ल जैसी होगी असर उसके अंदर वैसे ही होगा। फार्मूला है, कुल्लो शैन यरजो इला असलिही, हर चीज लौटती है अपने असल की तरफ। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आपका दरबार लगा हुआ था। मतलब यह है कि जिस चीज की जो असल होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर उसकी खूबी कुछ न कुछ नजर आती है। हर चीज लौटती है अपने असल की तरफ। उसकी असल जो है, मतलब यह है कि नस्ल का असर उसकी औलाद पर कहीं ना कहीं होता है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लगा हुआ है। दरबार में आपने एक मरतबा ऐलान फरमाया, क्या लोगों, तुम में ऐसा कोई है जो हमारी ज़ियारत करा, जो हमारी मुलाकात करा दे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से? तमाम लोग खामोश रहे। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, कहा, ये काम मैं कर सकता हूँ। कहा, तुम मुलाकात करवा दोगे? कहा, हाँ, मुलाकात हम करवा देंगे, 6 महीने का टाइम हमको चाहिए, और 6 महीना तक हमको वजीफा पढ़ना पड़ेगा दरिया के किनारे बैठ करके। लिहाजा लगातार हम वजीफा पढ़ेंगे तो कमाना थमाना हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए 6 महीने का खर्चा हुजूर हमको दिया जाए, ताकि हम 6 महीना खाएंगे पिएंगे और दरिया के किनारे बैठकर वजीफा पढ़ेंगे, फिर आपकी मुलाकात करवा देंगे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह थे। आपने कहा कि बैतुल माल से इनको 6 महीने का खर्च अदा कर दिया जाए।
जब 6 माह पूरे हो गए, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का फिर दरबार लगा हुआ है। आपने ऐलान फरमाया, ऐ लोगों, मैंने कहा था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो हमारी मुलाकात करा दे ऐसा कोई है। तो एक बूढ़ा तैयार हुआ कि मैं मुलाकात करवा दूंगा। आज तो 6 माह पूरे हो गए। उस बूढ़े को बुलाया गया। उस बूढ़ा ने कहा, हुजूर थोड़ी सी कमी रह गई वजीफा में, लिहाजा 6 महीने का खर्च और दे दिया जाए, इसमें पक्का आपकी मुलाकात करा दूंगा। 6 महीने का खर्च उसको और दे दिया गया। 6 महीने के बाद जब उसको बुलाया गया, 1 साल के बाद, उस बूढ़े से कि भाई तुम्हारा वजीफा पूरा हुआ, तुम जो दरिया के किनारे जाकर वजीफा पढ़ते हो वो पूरा हुआ भी कि नहीं? कहा, हुजूर कहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और कहाँ हम, भला हम आपकी मुलाकात कैसे करा सकते हैं उससे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? कहा, हुजूर निकम्मा आदमी था, रोजी की कमी थी, भूखे मर रहा था, समझा कम से कम एक झूठ बोलकर ही सही साल भर का इंतजाम हो जाए तो क्या बुरा है। 1 साल का हुजूर इंतजाम हो गया, लेकिन हम कहाँ मुलाकात करा सकते हैं आपसे। रोजी रोटी 1 साल हमारी चल गई, अब जो हम कमाए हैं वो बचा है, तो आगे बाल बच्चों पे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बादशाह जलाल में आ गए। आपने दरबार में ऐलान किया कि लोगों, जो बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसकी सजा क्या है। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा, हुजूर उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, बादशाह की हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, कहा, हुजूर उसको कत्ल नहीं किया जाए, वो तो एक ही झटके में मर जाएगा, अच्छा तरीका यह है कि उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाए, कुत्ते उसको नोच नोच कर खा जाए। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि हुजूर, तीसरा आदमी खड़ा हुआ, बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा, हुजूर इसको न कत्ल किया जाए न कुत्ता इसके ऊपर छोड़ा जाए। कहा, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, जिस आदमी ने पहले कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इस आदमी ने ठीक कहा। फिर जो दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा इसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाए, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसने ठीक कहा। हजरत काजी हजरत अयास रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। उन्होंने बादशाह सलामत से कहा कि हुजूर, इस गरीब के एक झूठ बोलने से आपके खजाने से अगर कुछ माल इसको दे दिया गया, 1 साल का खर्चा इस बेचारे का चल गया, तो आपका उससे क्या घट गया? बादशाह की शान में उससे क्या कमी आ गई? हुजूर आप माफ कर देंगे तो बहुत भला हो जाएगा, बहुत बड़ा कर्म हो जाएगा। इस बेचारे का कम से कम घर तो साल भर चल गया, और आपको इसके झूठ बोलने से आपकी शान में थोड़ी कोई कमी आ गई है, लिहाजा हुजूर माफ कर दिया जाए। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, इसने ठीक कहा। बादशाह सलामत ने कहा, ये तो अजीब आदमी है। उस आदमी ने कहा इसको कत्ल कर दिया जाए, तब भी ये कह रहा है कि ठीक कहा। दूसरे आदमी ने कहा इसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाए, तब भी इसने कहा ठीक कहा। अब ये अयास कह रहे हैं कि उस आदमी को माफ कर दिया जाए, तब भी आदमी कह रहा है कि ठीक कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो बुजुर्ग फिर से खड़ा हुआ, कहा, हुजूर उस आदमी ने जो कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए मैंने कहा ठीक कहा कि उसकी फितरत में कत्ल करना शामिल है। इसके बाप दादा बादशाहों के दरबार में जल्लाद का काम किया करते थे, लिहाजा ये उस खून से पैदा हुआ है, लिहाजा ये कत्ल ही की बात सोचेगा ना, ये तो मार काट के खून से ही पैदा हुआ है, लिहाजा कत्ल की बात सोचेगा। और दूसरा आदमी ने जो कहा कि हुजूर इसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाए, इसका बाप दादा बादशाहों के दरबार में, राजा महाराजाओं के दरबार में कुत्तों को नहलाने का धुलाने का काम करता था, लिहाजा उसकी फितरत कुत्ते जैसी है। इसलिए मैंने कहा इस आदमी ने ठीक कहा, चूंकि वो आदमी अपने एतबार से सोचा, मैंने कहा ठीक कहा। अब रही बात अयाज की, तो हुजूर अयाज आले रसूल हैं, ये सैयद साहब हैं, हुजूर ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि मैदान करबला में सब कुछ लुटा दिया, कुंबा का कुंबा पूरा मैदान करबला में शहीद कर दिया, मगर जबान पर तक नहीं आई। हुजूर ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ये आले रसूल हैं, इनकी फितरत में लोगों का भला करना है, इनके ज़मीर खमीर में ये शामिल है कि लोगों के साथ वफा करें। हुजूर ये आले रसूल हैं, लिहाजा उन्होंने जो कहा
कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि वो माफ करने वाले खानदान में से ही है। सुभान अल्लाह। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई कारवाने अहले बैत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि हर आदमी की नस्ल का असर उसकी औलाद पे जरूर होता है। लिहाजा लड़कों के इंतखाब में, शादी ब्याह में, और लड़कियों के इंतखाब में, चुनाव में नस्ल पर ध्यान देना चाहिए, उसकी असल पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी नस्ल ठीक है, उसकी असल ठीक है, तो आने वाली नस्ल भी ठीक रहेगी और उसका पूरा मिजाज उसका ठीक ठाक रहेगा, उसका दीनी मिजाज भी ठीक रहेगा, उसकी फितरत भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर सारा का सारा ध्यान पैसे पर चला गया है और पैसे पे अगर सारा कारोबार तय कर लिया गया है, तो अब चाइना माल खरीद कर ये सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी जापानी जैसी हो, तो ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। अगर ठोस सामान चाहिए तो ज़्यादा पूंजी लगानी होगी, जापानी माल खरीदना होगा, और सस्ते में माल अगर चाहिए तो चाइनीज़ काफ़ी है। आपको फैसला आपके हाथ में है कि आप चाइनीज़ खरीदते हैं या जापानी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे उलमाए हमारे स्टेज पर मुख्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा वक्त में ज़्यादा आपका नहीं ले सकता। बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।